students. So today we will deal with one of the parts of the first chapter, that is asexual reproduction. The chapter is reproduction in organisms, and we were dealing with asexual reproduction. In previous lecture, that is in part 1, I have discussed about the types of asexual reproduction, and in that fission was included, types of fission was included, budding, fragmentation and regeneration was included. You can go to the link, it is given in the description box for that particular section of the chapter. Now today here we will deal with another some more types of asexual reproduction. So hello students, this is Dr. A. Zaira, and today I am here with another section of asexual reproduction, and in this we are going to discuss about some more types of asexual reproduction and some questions. We will deal with some of the questions also. So now let us start with the asexual reproduction, and we will start with spore formation. Spore formation, as it is also a type of asexual reproduction, and spore is a reproductive cell which is capable of developing into a new individual without fusion. That means here no individual, as you have studied earlier also, that in asexual reproduction there is no involvement of two partners. Single individual is involved, single individual is required for reproducing offspring of its own kind. So here spore is also a reproductive cell which is capable of developing into a new individual organism, but without fusion. This spore is produced without fusion of any two bodies. किसी भी दो तरह की इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करके स्पोर नहीं बनता. स्पोर जो है वो सिंगल इंडिविजुअल को डेवलप करता है और एक सिंगल बॉडीज में ही ये फॉर्म होता है. सो स्पोर ये एजेंट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. इनमें कोई भी जैसे गैमेट्स होते हैं उस तरह से आप इसको मत समझिए कि एक प्रकार का स्पोर कंबाइन करेगा दूसरे प्रकार के स्पोर से और फिर एक न्यू बॉडी बनेगी या न्यू इंडिविजुअल बनेगा. नो, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज टू इंडिविजुअल ऑन देयर ओन. सिंगल स्पोर कैन गिव राइज टू इंडिविजुअल ऑन देयर ओन. सो दे आर एजेंट, दे आर एजेंट्स ऑफ asexual reproduction. और ये these spores are produced in bacteria, fungi as well as green plants. In all those organisms where asexual reproduction, you can see here spore formation is very much evident in bacteria, fungi and green plants. Bacterial spores are a resting or dormant stage in life cycle. जो बैक्टीरिया में spores बनते हैं तो वो बैक्टीरिया की वो स्टेज होती है या वो लाइफ साइकिल की स्टेज होती है जो डॉर्मेंट स्टेज होती है, यानी कि जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है और उस अनफेवरेबल कंडीशन में उनको लिविंग रहना होता है, लेकिन वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं और ये प्रिजर्व करके रखता है स्पोर बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में. सो हियर a very important role is played by spore where it preserves or protects the bacteria from unfavorable condition, and this makes the bacterial cell highly durable and they can germinate after years of dormancy. बहुत समय तक वो dormant रहता है स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अच्छी एक कंडीशन को देख के वो जर्मिनेट होता है और एक नए बैक्टीरियल सेल में डेवलप हो जाता है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी दो प्रकार के सेल या दो प्रकार के दो इंडिविजुअल के इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. यहाँ पे सिंगल स्पोर जो है वो जहाँ भी वो फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो अपने पेरेंट लाइक वो डेवलप कर जाता है. So this is another kind of asexual reproduction. Now today we will deal in spore formation about fungi and bacterial spores. So as you have seen in bacterial spores, it prevents the bacteria and it forms dormant stage, और ये dormancy जो है बहुत समय तक लगती है, बहुत सालों तक भी होती है, कुछ समय के लिए भी होती है और बहुत साल तक भी ये बैक्टीरिया जो है अनफेवरेबल कंडीशन लाइक कि बहुत हाई टेम्परेचर हो गया या लो ह्यूमिडिटी हो गई या इस तरह का कोई भी कंडीशन जो फेवरेबल नहीं है उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे ये स्पोर्स जो हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, वो सीज्ड हो जाते हैं, और जब कंडीशंस फेवरेबल होती है तो ये जर्मिनेट करते हैं और एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं. Now when we come on to fungi, in fungi you will see that the spores
सर्व द फंक्शन दैट ऑफ अ सीड। आप एक प्लांट में जो सीड का काम आप देखते हैं कि एक बीज का जो काम होता है कि बीज जहाँ गिरी जर्मिनेट हो गई और एक नया प्लांट को डेवलप किया। ऑल्दो ये जो बीज बनती है, सीड बनती है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रोल जो है उसका लमसम उसी तरह का होता है जैसे एक प्लांट में सीड का काम होता है। और वो स्पोर्स जो हैं वो जहाँ भी जर्मिनेट होते हैं वो वहाँ पे गिरते हैं, वहाँ पे एक नया फंगाई को डेवलप करता है। एंड दे प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या होती हैं? ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं फंजाई के बॉडी में, वो ऑर्गेन होते हैं जिससे कि स्पोर्स बनते हैं, जिसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं। उन स्पेशल बॉडीज़ को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। ये फ्रूटिंग बॉडीज़ कई प्रकार के भी होते हैं और उनके प्रकार के हिसाब से आप उनको नाम भी देते हैं। नाउ फंगल स्पोर्स ग्रो अंडर कंडीशंस लाइक, ये स्पोर्स उसी कंडीशन में ग्रो करते हैं जैसे कि आपके आ गया टेम्परेचर आ गया, सॉरी आपका टेम्परेचर आ गया, मॉइस्चर आ गया, उसी कंडीशन में ग्रो करते हैं जैसे मॉइस्चर हो गया जहाँ भरपूर मॉइस्चर है, टेम्परेचर हो गया जहाँ की एक रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, और जहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी हो। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ प्रेजेंट होंगी, इस तरह की कंडीशंस जहाँ इजीली अवेलेबल होंगी, फंगल स्पोर्स जो हैं वहीं पे डेवलप करेंगे। आप देख लीजिए ब्रेड मोल्ड्स जो होते हैं, या आप जो फफूंद लगती है ब्रेड के ऊपर भी, जो फफूंद लगती है उसको आप देख लीजिए, उसके जो स्पोर्स निकलते हैं। बारिश के सीज़न में आप देखिए ज़्यादातर जहाँ ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, उस कंडीशन में आप देखिए कि वहाँ पे बहुत आराम से वो ग्रो करता है। स्पोर्स तो ड्राई होते हैं और जैसे ही वो एक कंडीशन फेवरेबल देखते हैं वहाँ पे वो सेटल होते हैं एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम पे, एक ऐसी जगह पे सेटल होते हैं जहाँ की उनको फूड की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पे टेम्परेचर हो और जहाँ पे अच्छा खासा मॉइस्चर हो। सो फंगल स्पोर्स को डेवलप होने के लिए इन कंडीशंस की ज़रूरत होती है और ये फेवरेबल कंडीशंस में वो डेवलप करते हैं। नाउ when we move on to next, we will see there are two types of spores in fungi. The first type is sporangiosspores. ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं ये होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स स्टूडेंट्स। और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं ये आप देखिए कि एक जिस भी सरफेस पे सबस्ट्रेटम पे ये ग्रो करता है तो वहाँ पे अपने आप को वो अटैच करता है बाय मीन्स ऑफ रॉइजर्स, जो कि रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक, जो अपने आप को उसमें पेनिट्रेट करके सबस्ट्रेटम में वो बिल्कुल इरेक्ट रखता है। और ये देखिए ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसकी, ये है स्पोरेंजियम, जिसके अंदर की स्पोरेंजियोस्पोर्स यानी कि छोटे आप देखिए ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं ये एंडोजीनस होते हैं। एंडोजीनस का मतलब दे आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम। ये देखिए यहाँ पे ये स्पोरेंजियम, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है बॉल लाइक, और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में ये ग्रो करते हैं, इसमें ये बनते हैं, इसमें ये प्रोड्यूस होते हैं। और कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इसमें ये प्रोडक्शन जो इनका होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल में, जो आप सेल है, इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सेल के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें सेल में जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस बीच में जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी चीज़ें ग्रोस्ड होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, ये सारा आपके प्रोटोप्लाज्म में काउंट होता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है, वो डेवलपमेंट में स्पोर के फॉर्मेशन में हेल्प होती है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है न्यूक्लियस के अराउंड, और ढेर सारे ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको आप स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कौन से फंजाई का? फंजाई में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जिसमें फाइकोमाइसेटिस, अब तो ये फाइकोमाइसेटिस के में नहीं लिया जाता है, लेकिन फाइकोमाइसेटिस के अंदर आपके जाइगोमाइसेटिस हो गया, ओमाइसेटिस हो गया, ये ढेर सारे तरह के इस तरह की चीज़ें आपके कैटेगरीज आती है फंजाई की। और ये इस तरह के फंजाई में, इन फंजाई में ये इस तरह के स्पोर्स बनते हैं जो कि एंडोजीनस होता है, जिनका फ्रूटिंग बॉडी जो है स्पोरेंजियम होता है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ये बता दें कि ये जो है जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं ये दो तरह के होते हैं।
जो होते हैं जू स्पोर्स, जो कि मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है ये मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये इनका मूवमेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला या मूवमेंट के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसलिए इनको हम ये जू स्पोर्स में आते हैं। इस कैटेगरी के स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि मूव कर सकते हैं वो होते हैं जू स्पोर्स। और अप्लानोस्पोर दूसरे प्रकार का स्पोरेंजियोस्पोर है जो कि नॉन मोटाइल होता है, ये मूव नहीं करता है, ये एक जगह स्थिर होता है। इसको भी हम आगे देखते हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, ये तो पहला टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर था। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पोर देखते हैं फंजाई में, और वो है आपके कोनिडिया। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जू स्पोर्स और अप्लानोस्पोर्स के बारे में। जू स्पोर्स क्या है उनको डिटेल्स में हम पढ़ते हैं कि जू स्पोर्स जो हैं वो नेकेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, खुले होते हैं। इनमें कोई ऊपर सिस्ट या किसी तरह के कोटिंग या वॉल की कवरिंग नहीं होती है, वॉल लेस होते हैं। और इनमें स्पेशलाइज्ड ये होते हैं फॉर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल यानी एक जगह से दूसरी जगह ये अपने आप को मूव करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकते हैं। क्यों? और स्पेशलाइज फॉर डिस्पर्सल बिकॉज दे कैन नॉट डिवाइड नॉर एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनके स्पेशली ये इसीलिए बिल्ट होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, क्योंकि ये बहुत जो लास्ट स्टेज इनका डिवीजन का होता है और उसके बाद ये आराम से ये एक जगह से दूसरी जगह ये मूव हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। एंड दे स्विम फॉर मैनी आवर्स, अगर वो एक्वेटिक में है दे स्विम इन मैनी फॉर मैनी आवर्स। और ये क्यों स्विम करते हैं? इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है? जो इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है इंडोजीनस जो फूड रिजर्व्स प्रेजेंट होते हैं, इनको ये कंज्यूम करते हैं और आराम से ये स्विम करके ये मूवमेंट इनका होता है। दे एंसिस्ट बाय रिट्रैक्टिंग और शेडिंग देयर फ्लैजिला एंड सिक्रेटिंग वॉल। कभी जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने फ्लैजिला को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके गिरा देते हैं और उसके अंदर और अपने आप को एक सिक्रेटिंग वॉल के अंदर वो अपने आप को एंसिस्ट कर लेते हैं, अपने आप को वो एंक्लोज कर लेते हैं इस तरह की बॉडी में, ठीक है। और ये जो जू स्पोर्स हैं ये प्रिमिटिव एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल फंजाई में ही दिखते हैं। बहुत प्रिमिटिव फंजाई का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे मैंने बताया फाइकोमाइसिटिस बहुत प्रिमिटिव है और इसमें ही इस तरह का ये जू स्पोर्स आपको नजर आएगा। दिस जू स्पोर्स दे प्रोड्यूस्ड बाय टेरेस्ट्रियल फंजाई। जो टेरेस्ट्रियल फंजाई में जू स्पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कब रिलीज होते हैं? बारिश के समय रिलीज होते हैं। और जब वो बरसात में रिलीज होते हैं दे आर रिलीज आफ्टर अ रेन शेड, जब रेनफॉल होती है। एंड देन व्हाट हैपन्स कि वहाँ से वो मूव करते हैं, स्विम करते हैं और स्विम करके वो जो है अपना किसी सॉइल पार्टिकल पे या किसी वेट सरफेस पे प्लांट के जाके वो सेटल होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपके जू स्पोर्स का मूवमेंट आप देख सकते हैं या जू स्पोर के कैरेक्टर्स हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज अप्लानोस्पोर्स। तो अप्लानोस्पोर्स बिल्कुल आप इसमें देख सकते हैं कि ये नॉन मूविंग होते हैं और इनमें जो होती है वॉल्ड होते हैं ये, एंड दे आर नॉन मोटाइल। इनमें कोई भी मूविंग इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता जो उनको मूवमेंट के लिए कैपेबल बना सके। इसका एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड्स, दे प्रोड्यूस अप्लानोस्पोर्स इन देयर स्पोरेंजिया। तो उसमें इस तरह का कोई भी फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है और वो इस तरह का मूवमेंट या एक्वाटिक कंडीशन में जिस तरह से स्विम करते हैं इस तरह का इनमें मूवमेंट आप नहीं देख सकते हैं। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप, ये तो था स्पोरेंजियोस्पोर का टाइप जो कि दो प्रकार के होते हैं, जू स्पोर्स एंड अप्लानोस्पोर्स। देन सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर्स फाउंड इन फंजाई आर कोनिडिया। और कोनिडिया जो हैं वो एक्सोजीनस होते हैं। आप ये देख सकते हैं ये कोनिडिया का स्ट्रक्चर है, ये एक्सोजीनस है। एक्सोजीनस यानी ये देखिए उसमें आपकी एक फ्लोटिंग बॉडी बनी थी स्पेशली, वो एंक्लोज थे पूरे स्पोर्स। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्पोर्स हैं ये देखिए इस तरह से पूरे ये किसी भी चीज़ में एंक्लोज्ड नहीं है, किसी भी बॉडी में या किसी भी स्ट्रक्चर में ये बंद नहीं है, ये खुले हुए हैं। तो एक्सोजीनस हैं एंड दे आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ सपोर्टिंग हाइफे। जिस पे ये ग्रो कर रहा है उसको हाइफे आप कहते हैं और सपोर्टिंग हाइफे के टिप पे ये ग्रो करता है। ये देखिए ये टिप पे ये हाइफा है तो इसके
टिप पे ये ग्रो कर रहा है, और उस सपोर्टिंग हाइफे को हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। तो जैसे उसमें था स्पोरेंजियम था, तो स्पोरेंजियम के अंदर आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स होते थे, तो उसी तरह से जिस हाइफे के ऊपर ये कोनिडिया डेवलप हो रहा है उस हाइफे को आप कहते हैं कोनिडियोफोर्स। एंड कोनिडिया जो है ये एडवांस्ड फंजाई में प्रेजेंट होते हैं, इनमें आपको नज़र आते हैं। और इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती हैं या तो फ्लास्क शेप, आप देख सकते हैं इस तरह का फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, तो उसको आप कहते हैं पिकनीडिया, और अगर मैट्रेस शेप होता है तो उसको एसरव्यूलाई कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उन फंजाई में जो माइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस में ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। और ये एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस आप जो है ये बहुत ये बेसिडियोमाइसेटिस जो है ये आपके मशरूम इसको बिलोंग करता है। एंड एस्कोमाइसेटिस जो है ये एक लार्जेस्ट फाइलम है फंजाई का, जिसमें कि स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल प्रेजेंट होता है, जिसको आप एस्कस कहते हैं। इसीलिए आप ये देख सकते हैं ये बड़े एडवांस फंजाई में प्रेजेंट होता है। और ये दोनों एस्कोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस ये दोनों मिला के एक सब किंगडम में आते हैं, जिसको आप डाइकेरिया कहते हैं। और इनका स्पेसिफिक ये फीचर है कोनिडिया फॉर्मेशन। अब कोनिडिया जो है दो तरह के होते हैं, थैलिक कोनिडिया एज वेल एज यू विल सी ब्लास्टिक कोनिडिया, थैलिक एंड ब्लास्टिक। थैलिक कोनिडिया क्या होता है कि इट डेवलप बाय सेप्टेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफा। ये देखो सेप्टेशन यानी सेप्टा जो उसके बाहर की कवरिंग या जो सेप्टा है वो उसमें कटाव होता है या उसमें सेपरेशन होता है, और इस तरह से इसको आप कहेंगे सेप्टेशन या फ्रैगमेंटेशन, जिसको बोल सकते हैं फ्रैगमेंटेशन। छोटे छोटे टुकड़ों में वो बनता है, हाइफा ही टुकड़ों में कटता है, उसको आप सेप्टेशन या फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। और इस तरह से जो कोनिडिया बनता है उसको आप थैलिक कोनिडिया कहते हैं। और ये कहाँ पे डेवलप होता है? इट डेवलप एट द टिप ऑफ द हाइफे या इंटर कैलरी पोजिशन। इंटर कैलरी यानी सेंट्रल पोजिशन पे कहीं बनता है, हाइफे के टिप पे बनेगा या तो कहीं बीच में प्रेजेंट होगा। और हाइफल वॉल आर इन्वॉल्व इन स्पोर फॉर्मेशन। बेसिकली जो वॉल होती है, जैसे ये अगर ये हाइफे है तो इसकी जो वॉल है वो इन्वॉल्व होती है इस तरह से सेप्टेशन में करके, ये स्पोर फॉर्मेशन में ये वॉल हेल्प करती है। तो यहाँ पे इस तरह के कोनिडिया को हम कहते हैं थैलिक कोनिडिया। और दूसरा प्रकार का जो कोनिडिया आता है वो आता है आपके ब्लास्टिक कोनिडिया। ये ब्लास्टिक कोनिडिया जो है ये बडिंग से डेवलप होता है, यानी कि डेवलप बाय बडिंग एंड स्वेलिंग प्रोसेस। यहाँ पे बड्स बनते हैं और वो अलग होते हैं, वो बड्स बनते जाते हैं और वो अलग होते जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कॉन्टीन्यूअस है थैलिक में कि ये एक फ्रैगमेंटेशन होता है, यानी कि ये एक बीट जैसा स्ट्रक्चर बनता चला था कॉन्टीन्यूअस में। लेकिन यहाँ पे ब्लास्टिक में क्या होता है कि ये जो है एक तरह से बड बनता है और ये रिलीज हो जाता है। इट में डेवलप एज सिंगल स्पोर, एक सिंगल स्पोर बनता है, वो फ्री होता है और वो नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है, या फिर कभी कभी ये चेन जैसे भी बनता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो स्पोर्स हैं, स्पोर फॉर्मेशन जो है चाहे वो बैक्टीरियल सेल में हो या फंगस में हो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भिन्न तरीके से होता है। और ये आप फंगस में आप अगर देख रहे हैं फंजाई में, तो आप देख सकते हैं कि उसमें आपको स्पोरेंजियोस्पोर के फॉर्म में या कोनिडिया के फॉर्म में दिखेगा। और स्पोरेंजियोफोर में भी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें दो कैटेगरी आपको नज़र आती है। एक मूवेबल कैटेगरी है जो मोटाइल होती है, दैट इज़ ज़ूस्पोर्स, एंड जो मूवमेंट नहीं जिसमें होता है दैट इज़ अप्लानोस्पोर्स। सो एंड दिस कोनिडिया, एक्चुअली कोनिडिया जो है ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड फंजाई में आपको नज़र आएगा, एडवांस फंजाई ही इसको प्रोड्यूस करते हैं। वेर एज जो है स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो बहुत प्रिमिटिव फंजाई में आपको नज़र आता है, और ज़्यादातर आपको एक्वेटिक में भी नज़र आएगा, टेरेस्ट्रियल में भी नज़र आएगा। और वो स्पेसिफिक फीचर है कुछ सर्टन फंजाई का, और ये स्पेसिफिक फीचर है इन दो पर्टिकुलर फंजाई का, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपने पहले पढ़ा था फिशन पढ़ा, बर्डिंग पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा, फिर स्पोर फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट इज़ अ टाइप फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ फाउंड इन प्लांट्स। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स। आप प्लांट्स में आप देख सकते हैं होता है, और कई तरीके से प्लांट के कई पार्ट्स जो हैं वो
अपने आप को न्यू बॉडी में डेवलप करते हैं और एकदम प्लांट लाइक या अपने पेरेंट लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, जो कि जेनेटिकली सिमिलर होता है। तो उस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कोई भी सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्लावर। फ्लावर क्या है, सेक्सुअल बॉडी है, तो ये फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होता। तो पॉलिनेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो पॉलिनेशन भी एक पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, या फिर सीड प्रोडक्शन भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। नाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं, प्लांट के स्टेम हो गया, लीफ हो गई, रूट्स हो गए, और ये सब जो है पेरेंट प्लांट से ये कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होते हैं और एक नए प्लांट को जन्म देते हैं, नई ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, प्लांट लाइक अपने पेरेंट प्लांट लाइक को जन्म देते हैं, और इसीलिए इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में लेकर आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, एकदम सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। और इसमें बहुत फॉर्म्स में ये बहुत वेजिटेटिव पार्ट से ये डेवलप होते हैं, लाइक बल्ब्स के थ्रू, राइजोम्स के थ्रू, जो हम आगे पढ़ेंगे। देन रनर्स हैं, ट्यूबर्स हैं, सकर्स हैं, ये फॉर्म्स हैं जिससे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और इन फॉर्म्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। तो ये फॉर्म्स, इन फॉर्म्स से यानी किसी में बल्ब के फॉर्म में बन गया और बल्ब गिर गया और वो नए प्लांट में डेवलप हो गया। किसी में राइजोम है, जैसे अदरक है, जिंजर है, तो राइजोम को हमने यूज़ किया, वो उससे एक नया प्लांट डेवलप हो गया। या फिर रनर्स हैं, ट्यूबर्स हैं, आलू है, पटेटो है, तो उसको भी आपने यूज़ किया और नए पौधे उससे कल्टीवेट किए, तो इन सब को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, यानी जिससे कि आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा सकते हैं। वेजिटेटिव मोड से आप इनके प्लांट के पार्ट से आप नए प्लांट को डेवलप कर रहे हैं, और ये जिन पार्ट से आप डेवलप करते हैं, इन पार्ट्स का नाम यहाँ दिया हुआ है, ये पार्ट्स हैं, और इनको आप कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। आई होप स्टूडेंट्स हु हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस, हियर द क्वेरी इज क्लियर। नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो नेचुरली ये होती हैं, आप नेचर में देखते हैं और ये नेचुरली होती हैं, और दूसरी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको आप कराते हैं आर्टिफिशियली, इनको प्रोपोगेट कराते हैं प्लांट्स को। Now here we are going to deal in this lecture with natural vegetative propagation, and we will see all the types of all the modes or all the means of vegetative propagation that takes place naturally. तो अभी इसमें हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस और प्रोपोग्यूल्स, जो भी कोई भी इनमें से एक फॉर्म हो, इट डिटैचेस फ्रॉम द प्लांट पेरेंट बॉडी और एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट अंडर सूटेबल कंडीशन। जब कंडीशन सूटेबल, प्लांट के ही ऊपर, प्लांट के ही पार्ट में ये अटैच होते हैं प्रोपोग्यूल्स, और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं या ये प्रोपोग्यूल्स मैच्योर हो जाते हैं, तो ये प्लांट बॉडी से, पेरेंट बॉडी से ये खुद को डिटैच कर लेते हैं, ये खुद को अलग कर लेते हैं, और फिर सूटेबल जगह पे, सूटेबल एनवायरनमेंट पे, सूटेबल कंडीशन में ये अपने आप को डेवलप कर लेते हैं इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर ये कई मीन्स से होता है, कई तरीकों से होता है। लेट अस सी दिस फॉर्म्स। ये देखिए आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ये होते हैं इन फॉर्म्स से। हियर कम्स रूट, रूट से भी होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, एरियल स्टेम, लीव्स एंड बुलबिल्स। तो इतने प्रकार से ये देख लीजिए बच्चों, ये सारे प्लांट के ही पार्ट्स हैं। रूट प्लांट का पार्ट है, अंडरग्राउंड स्टेम्स, जो स्टेम अंडरग्राउंड हैं, उनके भी पार्ट को हम यूज़ करते हैं, या नेचुरली वो अपने आप को नए पौधे में डेवलप करता है। सब एरियल प्लांट्स, यानी कि जो सब एरियल है, यानी कि पूरे एरियल नहीं है, वो सबमर्ज्ड है ग्राउंड में, लेकिन वो पूरा डीप रूटेड नहीं है, सब एरियल हो गए। एरियल यानी जो इरेक्ट होते हैं, जो आपके इरेक्ट प्लांट्स होते हैं, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं। एंड लीव्स से भी डेवलप होते हैं नए प्लांट्स, एज वेल एज बुलबिल्स। तो हम इन सारी चीज़ों को, इन सारी मीन्स को आज इसमें पढ़ेंगे, इनके सब टाइप्स भी पढ़ेंगे और इनकी डिटेल्स को जानेंगे विद वेल डिफाइंड फिगर्स एज वेल। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर वी विल सी रूट्स। रूट्स में क्या हो रहा है? सम प्लांट्स
इन सम प्लांट्स एडवेंटिशियस रूट्स बिकम थिक एंड स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, रूट्स के आपको टाइप पता है, टैप रूट है जो कि एकदम एक मेन रूट होती है इनमें, और प्लस उनमें छोटे छोटे रूटलेट्स होते हैं। लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स में क्या होता है, इस तरह का एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एडवेंटिशियस रूटिंग को हम कहते हैं। तो ये रूट्स में कुछ पोर्शन जो है थिक हो जाता है, ये स्वेल हो जाता है। और इसमें स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड हो जाता है। और ये स्वेलिंग में कुछ बर्ड्स होती हैं, और उन बर्ड्स को फिर हम दोबारा प्लांट करते हैं सॉइल में निकाल के, तो उससे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल डहलिया, स्वीट पोटैटो, शकरकंद जैसे आप देख सकते हैं। सो हियर यू विल सी द फिगर। देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये सारे एडवेंटिशियस रूट्स हैं, और इसमें आपको ये कुछ बर्ड्स जैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये स्वोलन है, एज वेल एज ये इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल है। और यहाँ पे आप जब इनको निकाल के आप सॉइल में आप इनको प्लांट करते हैं, तो आपको एक नया प्लांट, एक बिल्कुल पेरेंट प्लांट जैसा ही आपको नया प्लांट मिलता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रूट्स का जो एग्जाम्पल है वो है स्वीट पोटैटो एंड डहलिया। रूट से हम इस तरह से एक नए प्लांट को वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या होते हैं? अंडरग्राउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स कैन बी यूज्ड। बहुत तरह के जो स्टेम्स अंडरग्राउंड होते हैं, जो इरेक्ट नहीं होते, ग्राउंड से ऊपर नहीं होते, अंडरग्राउंड स्टेम्स में आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं उन्हीं के जैसा एक पौधा बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए। सबसे पहले उनमें कई पार्ट्स आपको मिलेंगे अंडरग्राउंड रूट स्टेम्स में, जिसमें आपको ट्यूबर पढ़ना है, आपको ट्यूबर्स के साथ आप बल्ब्स को पढ़ने हैं, आपको राइजोम्स पढ़ने हैं, सकर्स पढ़ने हैं। तो ये पार्ट्स जो हैं, ये टाइप्स जो हैं यूज़ होते हैं, और इनसे आप इन पार्ट्स से आप एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्यूबर्स के बारे में। ट्यूबर्स लाइक पोटैटो, पोटैटो एग्जाम्पल है, एक अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर है स्टेम का, और ये एक एग्जाम्पल है, यानी कि स्टेम स्टोरेज के काम यहाँ पे करता है स्टेम, अंडरग्राउंड होता है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ट्यूबर के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं ना, बरसात में भी देखिए आलू के ऊपर छोटे छोटे इस तरह के आई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनमें से आपको स्केल्स जैसे नज़र आएंगे जब वो डेवलप ग्रो करता है। तो उसमें टाइनी स्केल लीव्स उसमें होते हैं छोटे से बर्ड्स के साथ, वो सरफेस पे आलू के। दीज बर्ड्स फॉर्म अ न्यू प्लांट। अगर आप उसको उसमें से डिटैच करके या एज इट इज़ आप उसको सॉइल में ग्रो करेंगे, तो आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल ये पोटैटो का एक प्लांट आपको मिलेगा। तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे यू कैन सी, ये इस तरह का ये बर्ड जैसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये स्केल्स हैं, और ये पोटैटो के सरफेस पे आपको नज़र आ रहा है। और जब आप इसको ग्रो करते हैं एज सच, तो यहाँ पे आपको एक नया प्लांट ग्रो करता हुआ नज़र आता है। तो ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कोई भी सेक्सुअल मोड यूज़ नहीं हुआ है, कोई दो इंडिविजुअल यूज़ नहीं हुए, केवल प्लांट के एक पार्ट से हमने यूज़ किया है। स्टेम का ये पार्ट है जो कि अंडरग्राउंड है और स्टोरेज के काम आता है। इस पर आपको ये स्केल्स और बर्ड्स नज़र आते हैं, इनको आप लेके ग्रो करते हैं, और इससे एकदम आइडेंटिकल पेरेंट प्लांट आपको मिलता है। तो ये हो गया आपका अंडरग्राउंड स्टेम का एक एग्जाम्पल, ट्यूबर के फॉर्म में आप कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज bulbs. You can see bulbs. Bulb is a type of underground stem with many buds. उसमें बहुत सारे buds होते हैं। जैसे आपने आलू में देखा कि एक कहीं कहीं आपको आई के ऊपर छोटा सा स्केल के साथ एक बर्ड नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर आपको कई सारे बर्ड्स होते हैं, और इन सारे बर्ड्स को आप अलग करके अलग अलग से आप उसको प्लांट करेंगे तो आपको नए प्लांट्स मिलेंगे। जैसे गार्लिक, डैफोडिल या प्याज, इन सारी चीज़ों में आपको बर्ड्स, गार्लिक आप देख लीजिए, जो लहसुन होता है उसमें आप देखिए बहुत सारे आपको बर्ड्स नज़र आएंगे, सारे बर्ड्स हैं ये देखिए। और जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये स्केल लीव्स आपको नज़र आ रही हैं, ये बर्ड्स हैं आपके, और ये रूट्स हैं। यहाँ पे आप एक एक बर्ड को रूट के साथ आप निकाल के जब आप उसको प्लांट करेंगे तो आपको एक नया प्लांट बिल्कुल आइडेंटिकल पेरेंट प्लांट जैसा मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि प्लांट के ही पार्ट को आपने यूज़ किया है, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है, और इसको आपने यूज़ किया है टू गेट अ न्यू प्लांट without using sexual mode of reproduction. Then coming on to the next part, that is your rhizome.
इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम, ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है विथ मैनी बर्ड्स। इसके ऊपर भी आपको कई जगह देखिए बर्ड्स हैं, ये सारे बर्ड्स नज़र आएंगे आपको। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे भी आप देखिए राइजोम्स में आपको ये दिस इज़ अ जिंजर एंड यू कैन सी सो मेनी बर्ड्स आर हियर, और नोड्स इंटर नोड्स भी नज़र आ रहे हैं, और इस पे आपको छोटे छोटे स्केल्स नज़र आएंगे। उन्हीं स्केल्स से आपको ये एक नया प्लांट नज़र आएगा। सो दीज आर मॉडिफाइड स्टेम्स and many birds and with many birds you can see many birds are there and they are have sufficient stored food material in them। और ये पीस ऑफ राइजोम, इसको आप कहीं गाड़ देंगे, ये पूरा एक पीस ऑफ राइजोम है, इसमें बहुत सारे बर्ड्स आपको मिलेंगे। आप इसको एज सच कहीं गाड़ देंगे। राइजोम हैविंग बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। इसको आप सॉइल में आप इसको डालिए, इसको आप इससे आप एक नया प्लांट कल्टीवेट कर सकते हैं। और ये मेथड यूज़ होता है इन प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स लाइक बनाना, जिंजर, टर्मरिक। और इसको क्या करते हैं, जो राइजोम है, जहाँ बर्ड्स हैं आपके, जहाँ स्केल्स हैं, उस पोर्शन को कट किया जाता है और छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको आप प्लांट कर सकते हैं सॉइल में। और आपको एक ही राइजोम से आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि ये इसमें ढेर सारे आपको बर्ड्स हैं, उनको आपको यूज़ करना है और उनको यूज़ करके आप वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हम कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सकर्स। सकर्स क्या होते हैं? दीज आर शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस arising at the base of an aerial shoot. Okay, and they grow into aerial branches and develop adventitious root and new suckers at the base. These suckers are separated to develop many individual plant from them. Example में पुदीना में आप ये चीज़ देख सकते हैं, और ये है उसका फिगर, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये अंडरग्राउंड स्टेम आप देख सकते हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, यहाँ पे दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम, यू कैन सी। और इस अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रांचेस, इस स्टेम से ब्रांचेस अराइज होते हैं, ये देखिए ब्रांचेस अराइज होते हैं, ठीक है, एरियल शूट्स में होते हैं, और उसके बेस में प्रेजेंट होती हैं एंड दे ग्रो इनटू एरियल ब्रांचेस। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और अंडरग्राउंड स्टेम से आप एरियल ब्रांचेस निकल रही हैं ये, और एरियल ब्रांचेस के साथ साथ एडवेंटिशियस रूट्स भी इनमें डेवलप हो रही हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और ये स्टेम जो है इसको आप कहते हैं सकर्स, और ये फिर आगे जाता है, और आगे जाके फिर से इसमें आप देखते हैं एडवेंटिशियस रूट डेवलप होती है और एक नया प्लांट डेवलप होता है एट द बेस, ठीक है। तो यहाँ पे बेस में ही जैसे ही प्लांट डेवलप हुआ, एक सकर आया, फिर ये ग्रो करता है आपके यहाँ पे एडवेंटिशियस शूट, और यहाँ पे आपके एरियल शूट डेवलप होता है, और हर एक इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप होता है। सेपरेट्स इसको सकर्स को फिर सेपरेट किया जाता है और इसको इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये सकर्स हैं, दीज आर सकर्स, और ये एक इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप रहा है, फिर ये यहाँ से सकर निकलेगा, एक इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप होगा। तो ये एग्जाम्पल है मिंट का, मेंथा जिसको आप कहते हैं पुदीना। पुदीना का में इस तरह के ग्रोथ होती है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप देखते हैं पुदीने में इस तरह से होती है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप। यहाँ पे आपने देखा अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में कि किस तरह से अंडरग्राउंड स्टेम्स के अलग अलग प्रकार को हम यूज़ करके वेजिटेटिवली नए प्लांट्स को हम डेवलप कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के तहत। अब आते हैं हम सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम्स, जो कि खड़े नहीं होते, इरेक्ट नहीं होते हैं, वो ग्राउंड सरफेस पे पैरेलल होते हैं, उनको आप कहते हैं सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स। और ये 3 प्रकार के होते हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स विच टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें होते हैं रनर्स, ये भी एक तरह के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं, दिखते हैं, स्टोलन्स एंड ऑफसेट्स। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। रनर्स को पहले पढ़ते हैं, लेट अस सी रनर्स। रनर्स में क्या होता है? दीज आर स्लेंडर हॉरिजॉन्टल स्टेम्स दैट स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द मेन प्लांट and new plant develop from the nodes located at the interval of runners। एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, लॉन ग्रास में ऐसा होता है, सेंटुला में देखिए इसमें ये फिगर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह का ये जो आपका रनर्स है ये मूव हो रहा है, जो ग्राउंड पे जो घास उगती है वो इसी तरह से उगती है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है,
तो ये हॉरिजॉन्टल स्टेम आप देख सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल स्टेम जो है ये मूव करती है ग्राउंड से, और यहाँ से मूव करके ये आउटवर्ड निकलती है प्लांट के, और यहाँ से नए नोड्स लोकेट होते हैं, और यहाँ से आपके फिर रनर्स डेवलप होते हैं, फिर से इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो ये एरियल पार्ट है, सब एरियल नहीं है, और बिल्कुल सकर्स के ही फॉर्म में ये होते हैं, और नोड से ही डेवलप होते हैं नए प्लांट्स। तो यहाँ पे ये हो गया रनर्स का, और डेफिनेटली आई शो यू द मोर फिगर्स रिलेटेड टू दिस। सकर्स के बाद अब हम रनर्स के बाद हम आते हैं स्टोलन्स पे। स्टोलन्स जो हैं ये स्ट्रक्चर एग्जांपल है इसका स्ट्रॉबेरी। आप देखिए कि स्टोलन में क्या होता है, रनर में क्या था कि एक हॉरिजॉन्टल स्टेम निकल रही थी जो सब एरिया जो आपके क्रीपिंग थी, ये आपके रनर्स हैं, ठीक है। बाकी तो एरियल होता है, लेकिन एक जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, और उसके नोड्स पे ये इस तरह के रूट्स निकलते हैं, और फिर आप वहाँ से एक नया प्लांट डेवलप होता है, क्योंकि ये सरफेस पे होता है। ये रनर्स की कैटेगरी होगी। लेकिन स्टोलन में क्या होता है, ये दूसरे प्रकार का रनर होता है। इसमें इन दिस मेन शूट फॉर्म्स द न्यू इंडिविजुअल। वहाँ पे आपने देखा कि जो एरियल पार्ट था रनर्स में उसका कोई रोल नहीं था, एक नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल स्टेम थी वही मूव कर रही थी, उसी से डेवलप हो रहे थे, नए शूट्स डेवलप हो रहे थे नोड्स पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि जो मेन शूट है, जो एरियल शूट है, उसी से एक शूट क्या होती है कि न्यू मेन शूट इज इन्वॉल्व टू डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेन शूट न्यू शूट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ग्रोइंग एंड ऑफ शूट, जो ग्रोइंग एंड है, जो एक नया शूट डेवलप हो रहा है, वो क्या होता है, वो आर्च हो जाता है, यानी कि वो बेंड हो जाता है और ग्राउंड को वो टच कर जाता है। जब वो ग्राउंड को टच कर जाता है तो वहाँ पे रूट्स डेवलप होती हैं, और वहाँ से फिर एक नया प्लांट निकल आता है। आप देखिए ये रूट यहाँ से आर्च हो रही है, ये स्टेम यहाँ से शूट जो है, एरियल शूट जो है यहाँ से आर्च हो रही है। कोई भी आपके क्रीपिंग स्टेम नहीं, जो एरियल शूट है वो क्या हो रही है, वो आर्च हो रही है, बेंड हो रही है, ग्राउंड को टच कर रही है। जहाँ पे ग्राउंड को टच कर रही है आप देखिए वहाँ पे रूट डेवलप हो रहा है, और वहीं से एक नया प्लांट निकल आ रहा है, एक नया शूट डेवलप हो रहा है। तो इस तरह के रनर्स को हम कहते हैं स्टोलन। और ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी या वेलिस्नेरिया प्लांट में इस तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि पेरेंट प्लांट से ही आप नया प्लांट को देख सकते हैं डेवलप होते हुए। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज योर ऑफसेट्स। ये ऑफसेट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा आप ये भी रनर की एक कैटेगरी है, और ये आप देख सकते हैं दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग, सिर्फ एक इंटरनोड लॉन्ग है ये, ठीक है, एक इंटरनोड लॉन्ग है। यहाँ पे आप देख लीजिए, नाउ हियर यू कैन सी दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग। यहाँ पे देखिए एक इंटरनोड लॉन्ग है, यहाँ पे ये दो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे यहाँ पे। तो एक इंटरनोड, ये एक नोड है, और यहाँ पे ये दूसरा नोड इंटरनोड है, और ये इनके बीच में ये आप ये गैप देख सकते हैं, और यहीं से एक नया प्लांट प्रोपोगेट होता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस ऑफसेट व्हेन ब्रेक हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जब ये ब्रेक होता है तो ये नए प्लांट फिर से उससे डेवलप होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं। आप वाटर हायसिंथ इकॉर्निया में देख सकते हैं, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है इंडिया में तो इंडिया का नेटिव नहीं है, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, इसमें अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये सबसे फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं। और ये रनर या स्टोलन या ऑफसेट्स के फॉर्म में ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, और डॉटर प्लांट्स को ये डेवलप करता है। लेकिन ये एक तरह का वीड है, फ्री फ्लोटिंग। आप देख रहे हैं ये फ्री फ्लोटिंग है, एक वीड है। वीड यानी अनवांटेड, जो बाकियों को नुकसान पहुंचाए, ये अनवांटेड चीज़ें, वाटर वीड है ये। और ये वाटर वीड जो है एक्वेटिक, ये क्योंकि एक्वेटिक है ये, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स को, स्पेशली फिशेस को इससे बहुत नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि ये जितना ऑक्सीजन होता है, इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और वहाँ पे जितने भी फिशेस होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वो फिशेस जो है वहाँ पे डेथ होती है फिशेस की। तो इसको इसलिए इसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। और ये इसका जो रिप्रोडक्टिव जो मोड है, किस तरह से ये अपने आप को प्रोपोगेट करता है, वो है ऑफसेट के फॉर्म में। बिल्कुल रनर का ही स्टाइल है, आप देख सकते हैं कि रनर का स्टाइल है इसमें।
यहाँ पे एक मेन हॉरिजॉन्टल आपके यहाँ पे ये स्टेम है, और ये एक नोड इंटर नोड के बीच में एक नोड, ये दूसरा नोड, और ये एक इंटर नोड दूरी होती है, और ये जहाँ पे एक नोड होता है वहाँ से एक नया प्लांट प्रोपोगेट होता है। फिर ये डिटैच हो जाता है और फिर ये ग्रो करता है नोड इंटर नोड, यहाँ से फिर एक नया इंटर नोड बनता है और ये एक नोड पे आके रुकता है, यहाँ से नया प्लांट फिर डेवलप होता है। तो इस तरह से ये एक तरह का रनर ही है, और ये वेजिटेटिव मीन्स से ये प्रोपोगेट करता है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, ये देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देखिए ये रनर्स हैं। रनर्स में आप देख लीजिए कि ये मेन हॉरिजॉन्टल स्टेम है, जिससे कि वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स बन जाते हैं और नया पौधा निकल आता है, वहाँ से नया शूट निकलता है। स्टोलन में क्या है कि मेन शूट ही आर्च हो जाती है और ग्राउंड को टच करती है तो उससे नई शूट निकल आती है। स्पेलिंग इज रॉन्ग, इट शुड बी स्टोलन ओ इंस्टेड ऑफ ई। ओके, देन हियर सकर इज देयर। तो ये सकर में भी आप देख सकते हैं कि ये अंडरग्राउंड होता है और यहाँ से नया प्लांट डेवलप होता है, एक प्लांट निकलता है, वहाँ से रूट डेवलप होती है और एक नया शूट डेवलप, फिर एक नया मूव करता है, शूट निकलती है, रूट डेवलप होता है। ऑफसेट में देख लीजिए ये यहाँ पे एक मेन स्टेम है जो कि हॉरिजॉन्टल है, उससे उसके नोड पे एक नया प्लांट निकलता है, फिर वो ग्रो करती है, फिर नोड पे एक नया प्लांट निकलता है। जनरली एक नोड का ही डिफरेंस होता है, इंटर नोड जो है इसका एक ही होता है, कई नहीं होते। इंटर नोड यानी ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, तो बेसिकली ये एक इंटर नोड ही डिफरेंस होता है और एक नया प्लांट निकल आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रकार के यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस थिंग, दैट इज एरियल स्टेम। अभी हमने पढ़ा रूट से कैसे प्रोपोगेट हो रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे प्रोपोगेट हो रहे हैं। देन कमिंग ऑन टू द क्रीपिंग स्टेम से कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। फिर एरियल स्टेम यानी जो आपके बिल्कुल एरियल है, वो ग्राउंड को कहीं भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, एरियल स्टेम है। तो इसमें आप ओपनशिया आप ले सकते हैं, जिसको आप कैक्टस फिलोक्लेड ऑफ ओपनशिया फिलोक्लेड ऑफ ओपनशिया आप देख सकते हैं। फिलोक्लेड यानी ये जो इसका ब्लेड होता है, दैट इज़ योर फिलोक्लेड। तो ये कहीं पे भी आप इसको डिटैच करके जब लगाते हैं तो एक नया पौधा निकल आता है, न्यू प्लांट इस फिलोक्लेड से बनता है। शुगर केन में भी आप देख सकते हैं कि उसको कहीं से भी आप एक उसका स्टेम को कट करके आपने उसको लगाया तो आपको एक नया प्लांट नज़र आता है। तो ये एरियल स्टेम इस तरह से अपने आप को प्रोपोगेट करता है, जिसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर ओपनशिया एंड शुगर केन। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज लीव्स। लीव्स से कैसे डेवलप हो रहा है, लीव्स से जो डेवलप होता है आप यहाँ पे देख लीजिए कि ब्रायोफाइलम एक एग्जाम्पल है। लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स पोजेसिंग एडवेंटिशियस बड्स, यहाँ पे बड्स हैं, ये देखिए ये बड्स हैं, और ये बड्स में यहाँ पे रूट्स आपको नजर आते हैं। हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड इन एग्जाम्पल, आप बेस्ट एग्जाम्पल है लीव्स का ब्रायोफाइलम। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे यहाँ पे बर्ड जैसे ये प्लांट जैसे बर्ड यहाँ बन रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि ये नॉचेस पे, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये नॉच है, लीफ का जो मार्जिन होता है उस मार्जिन पे नॉचेस होते हैं, तो उन नॉचेस पे ये बर्ड्स डेवलप होते हैं। और ये बर्ड्स जो हैं ये जब मैच्योर हो जाते हैं प्रॉपरली तो ये डीबर्ड होते हैं, ये प्लांट से डिटैच होते हैं, वो लीफ से डिटैच होते हैं, सॉइल में गिरते हैं एंड दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। यू कैन सी हियर यू कैन सी this is the example of leaf, the way a plant propagates from leaf. Example is bryophyllum. Then coming on to the next, that is bulbils, that is 6-part bulbil, 6 type, that is bulbils. ये किसी भी लीफ के एक्सिल में आपको बेस में यहाँ पे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको बुलबिल्स कहते हैं। तो these are small bulb like organs present in leaf axil or on the flower stalk, और ये लिली में, पाइनएप्पल में, अगेव में ये आपको इस तरह का नज़र आता है, और इनको जब आप डिटैच करके प्लांटिंग करते हैं तो इससे आपको एक नया प्लांट मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ vegetative propagation as well as the spore formation type. So here we end up with the natural part of natural vegetative propagation, and in next lecture we will deal with artificial vegetative propagation, that will include cutting, layering, grafting and micro propagation.
So students, if you have liked the lecture, kindly like and share and subscribe Zahra's classes, and till then you read all the parts, all the portion that has been explained in this video lecture, and await for the next part. Thank you and have a nice day. After we finish up with this part, the last part, we will deal with the question answer session also. That will be discussed from the competition point of view as well as. So thank you.